Hello friends, good morning. I am Mukund Adau, PGT Physics, JNV Nanded. Now here in today's lesson we are going to discuss the important topic potential difference and Ohm's law of a very first chapter, that is the electricity, for class 10. In last period we have seen the important concept of electric current. Before that, we have discussed the concept of electric charge and then electric current. Once again, we simply recall what is the electric current. Electric current is a rate of flow of electric charge passing through any cross sectional area normal to the area, and that is called as the electric current. Now, in terms of the formula, once again we can recall electric current I equal to Q by T. बरोबर है कि नहीं? That Q is charge and T is a time. Again, in which unit electric current is measured? Electric current is measured in ampere. Now, after the quantity this electric current, we have to now see another important quantity, that is called as the potential difference, and then we have to see the relation between the electric current and that potential difference. Now that we will be discussing when we discuss this Ohm's law. Okay. Now, what are the points to be discussed now in today's lesson? The points are, the first point we will discussing the electric potential difference. Second point we have to discuss, that is Ohm's law. And third point we will see certain numerical example, just to understand, just to recall the concept what we have learned in today's lesson. Now we will consider now one by one. We will discuss now one by one. So first we will see the concept of potential difference. Okay. Now to see the concept of potential difference. Now यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा एक्टिविटी बताऊंगा. Now here, suppose this is a glass tube. Your tube is there, which is open at both ends, and I am closing both the ends with the help of my finger. And suppose I am taking a water. इसमें मैंने water लिया. अभी now I am placing this tube like this. ये tube मैं ऐसा horizontal रख रहा हूँ. ठीक है. तो tell me, will water flow? Tube is exactly placed horizontal. Water flow? Your answer must be no. Now I am tilting this tube like that. That means I am taking this end upside and this end lower side. Will water flow? Yes. Answer will be yes. That water will be flow from this higher end to this lower. If I tilt this tube like this, again in case also, the water will flow. But when I am placing this tube in horizontal direction, there is no flow of water. Now if suppose I am placing this tube to more height, suppose I am raising the height again and again placing the tube horizontal, there will be no flow of water. But if I am maintaining certain difference between the two ends, there will be the flow of water. So if I am maintaining this type of a difference, the flow of water will be there. But exactly, मतलब मैं कितने भी उसको हाइट पर लेकर जा रहा हूँ, there will be no flow. बराबर है कि नहीं? मतलब अब जैसे जैसे अभी why water flows from one end to another end, एक एंड से दूसरे एंड तक क्यों जाता है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि गंगा नदी इट मूव्स फ्रॉम गंगोत्री टू बे ऑफ बंगाल. बराबर है कि नहीं? क्यों गंगोत्री टू बे ऑफ बंगाल बहती है? उल्टा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि दैट प्लेस इज एट हायर अल्टीट्यूड. बराबर कि नहीं? वो प्लेस ऊंचाई पर है, ये लोअर है. मतलब हम कह सकते कि हियर एट हायर प्लेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मोर and lower places gravitational potential is less. मतलब दोनों के बीच में वो डिफरेंस यदि है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार का कंसेप्ट अब हमको यहाँ पे कंसिडर करना है. बराबर है कि नहीं? मतलब जैसे जैसे हम हायर प्लेस पर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है. तो पोटेंशियल इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यदि हमको फ्लो को फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे?
ये एंगल को और अधिक बढ़ा दो, फ्लो कैसा होगा, और ज्यादा फास्ट है कि नहीं। जैसा जैसा ये स्लोप, और एक्जैक्टली जब ऐसे हमने इसको शुरू कर दिया तो फ्लो बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब यदि हम ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो सिर्फ पोटेंशियल बढ़ता है, तो पोटेंशियल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, देयर शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस। सेम टाइप ऑफ ए कंसेप्ट वी हैव टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी जैसे हमने करंट देखा है कि करंट मतलब क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्लेस से दूसरे जगह क्या होता है, फ्लो होता है, बराबर है कि नहीं। तो जिस प्रकार का वाटर फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार का जब इलेक्ट्रिक चार्ज यदि फ्लो होना है तो उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बराबर की। तो दो पॉइंट के बीच में यदि चार्ज को मूव करना है तो दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, और वो जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस नाउ वी हैव टू सी, एंड व्हिच इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, now we will define this electric potential difference. Electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying current is defined as the amount of work done to move the unit positive charge from one point to other. Now it is defined in terms of electric field potential, electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying current is defined as the amount of work done to move the unit positive charge from one point to another point, है कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर प्लेस टू लोअर प्लेस, बराबर है कि नहीं। तो ये आता है क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन की वजह से एक वर्क डन होता है। उसी प्रकार चार्ज को भी यदि हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है तो अपने आप तो होगा नहीं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि हमको करंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट समझो हमारे वायर है, वायर में से हमको करंट सेंड करना है तो हम वायर के दो एंड बैटरी को लगाते हैं। ये बैटरी क्या करती है, ये बैटरी खुद वर्क डन करती है। क्या वर्क डन करती है, वो जो चार्ज है वो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है कि नहीं। तो जो बैटरी जो वर्क डन करते हैं ना, वही जो वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बराबर कि नहीं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब हमने यदि 1 कूलम चार्ज ले लिया तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो कुछ भी वर्क डन लगता है, दैट वर्क डन दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि व्हाट इज, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। ये वर्क डन कौन करता है, ये वर्क डन इज डन बाय द बैटरी, सेल, जनरेटर, बराबर है कि नहीं। ये सारी असेंबलीज है कि नहीं, ये एजेंसीज है, बराबर है कि नहीं। ये वर्क डन करती है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। मतलब सिर्फ हमारे पास वायर है और वायर हमने रख दिया तो वायर में से करंट नहीं जाएगा, उस वायर को हमको बैटरी को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम उसको बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये जो बैटरी वर्क डन करती है, क्या वर्क डन करती है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है कि नहीं। तो स्पेशली जब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन चाहिए तो चार्ज नेसेसरीली कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डेफिनेशन कंसीडर करने के लिए वी हैव टू कंसीडर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point is referred as the electric potential difference. Okay. Now we will have the formula for this electric potential difference. Now here W amount of work is required to move charge Q, then potential difference is given by this formula, V equal to W upon Q. जैसा कि डेफिनेशन क्या बता रही, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन amount of work done to move the unit positive charge from one point to another point. सपोज हमने कंसिडर किया कि W amount of work is required to move charge Q, टोटल चार्ज Q के लिए W amount of work रिक्वायर होता है कि नहीं। मतलब Q के लिए W, तो एक चार्ज के लिए कितना होगा, W बाई Q। टोटल चार्ज हमारे पास Q है, Q को मूव करने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ता है, W। तो एक के लिए कितना पड़ेगा, Q से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। therefore W upon Q, मतलब ये जो रेशियो है W upon Q, it is nothing but it is work done per unit charge, it is work done to move unit charge, and which is the definition, and therefore V is equal to W upon Q. Therefore now this is the formula for the
potential difference, amount of work done to move a unit positive charge, or in other word we can say that W by Q is nothing but it is work done per unit charge. Simply the work done per unit charge, it is referred as the electric potential difference. मतलब यदि हमको करंट चाहिए तो वहां पे दो एंड के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. यदि पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. and when charge will move from one point to another point, we say that what electric current is there, because it is a rate of flow of electric charge. और चार्ज को मोशन यदि चाहिए दो पॉइंट के बीच में तो सर्टेन उस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए. और दिस इज नाउ अनदर फिजिकल इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक है. नाउ जस्ट हियर वी हैव डिस्कस ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एट द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. डी वोल्टा जिन्होंने ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट दिया है तो उनके नाम पर से ये यूनिट है कि नहीं. जैसे कि हमने बताया करंट का यूनिट एम्पियर है, उसी प्रकार है जो इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज देयर. द SI यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. VOLT वोल्ट. हमने क्या हमारे घर में नहीं देखते क्या, बस वहां पे लिखा होता है 250 वोल्ट 60 वोल्ट, बराबर है कि नहीं. तो जो दो पॉइंट होते हैं प्लग के पास जो पॉइंट होते हैं व्हाट इज ये दो पॉइंट, उस दो पॉइंट के बीच में यदि 250 वोल्ट है मतलब क्या है, वो दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट है. समझ रहे कि नहीं. तो दिस इज द क्वांटिटी व्हिच इज ए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. नाउ वी हैव टू डिफाइन द वोल्ट. अब ये फार्मूला आपके सामने V इज इक्वल टू W अपॉन Q, बराबर है कि नहीं. नाउ V इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए वोल्ट. यदि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यदि 1 वोल्ट होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दिस वर्क शुड बी 1 जूल, है कि नहीं. इफ वोल्ट इज ए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वी हैव टू सर्च फॉर द SI यूनिट ऑफ वर्क. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज द जूल. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द कूलम. and therefore 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Now this is sufficient to define 1 volt. Generally examination में क्वेश्चन आता है कि define 1 volt of potential difference. 1 volt potential difference डिफाइन करो. तो डेफिनेशन हमारे सामने है कि नहीं. इस फार्मूला से वी कैन इजीली डिफाइन. व्हाट इज दैट, न्यूमेरिकली देखो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. इसको ही हमको वर्ड में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट से टू बिटवीन डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में रहेगा, बराबर कि नहीं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट वे 1 joule of work is required या 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. बहुत सिंपल है कि नहीं. तो यहाँ से उल्टे हम कह सकते कैसा कि 1 कूलम चार्ज दो पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए यदि हमको 1 जूल इतना वर्क यदि लगता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 1 वोल्ट रहेगा. दिस इज द मीनिंग. देयरफॉर 1 वोल्ट इज that potential difference between 2 points when 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb. Therefore it gives the definition of the 1 volt. Okay, now to understand the concept we will discuss one simple example here. The example is that how much work is done in moving a charge of 2 coulomb between 2 points having potential difference of 12 volt. ठीक है, read carefully it. Example, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb. यहाँ पे हमको चार्ज दिया है. How much charge is given, 2 coulomb between 2 points. दो पॉइंट के बीच में having a potential difference 12 volt. बराबर की. Now we have to solve this example. Now say we will simply solve example. What are the quantities given? Just we have studied now. Q is equal to 2 coulomb which is given now according to example. Another V है कि ये लेटर जो V है it is used for potential difference. V is equal to 12 volt. Now which formula we have to use? Our basic formula. यहाँ पे हमने यूज किया W is equal to V into Q. ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि we know that just अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखा है V equal to W upon Q. वर्क डन पर यूनिट चार्ज है कि नहीं, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज.
therefore V equal to W upon Q, therefore W is equal to V into Q, therefore क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा कि how much work is done, how much work is done, therefore we have to use the formula for the work, and this formula है कहीं नया नहीं फार्मूला, ये फार्मूला हमने यहाँ से कंसिडर किया है, V equal to W by Q, therefore W is equal to V into Q. We have to put the value V, how much given, it is 12 volt, put the value Q, how much है कि नहीं. नाउ 12 वोल्ट यहाँ पे ये भी एसआई में, ये चार्ज कूलम ये भी एसआई में, इसलिए यूनिट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. देयरफॉर W इज इक्वल टू 12 into 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा. एंड व्हाट विल द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, इट विल बी जूल. देयरफॉर W इज इक्वल टू 24 जूल. देयरफॉर वी मे राइट द आंसर, द वर्क डन W इज इक्वल टू 24 जूल. Simply we have recall this formula just to solve this example. Okay. Now the second point we have to see, that is very important point, that is the Ohm's law. Now to discuss this Ohm's law, now see the diagram. In that diagram here this conductor is shown. This conductor is in the form of a wire, in the form of a cylinder. कोई भी जो वायर होता है ना, वायर हमने हमारे घर में वो हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है कि नहीं. तो यहाँ पे जस्ट कंसिडर दिस कंडक्टर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए वायर. ये जो उसका एरिया है इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है उसका एरिया, बराबर कि नहीं. नाउ दिस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी. ये जो कंडक्टर के जो दो एंड है कि नहीं, विद हेल्प ऑफ वायर के जरिए वी हैव कनेक्टेड द टू एंड्स टू दिस बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V इतना है. ठीक है. नाउ दिस इज द की, ऑन ऑफ की. नाउ समझो हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और सर्किट को क्या किया, ऑन किया. ऑन करने के बाद इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो जाएगा. हाउ करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इट विल मूव लाइक दैट एंड इट विल कम बैक टू द बैटरी एंड हियर द सर्किट विल गेट कंप्लीटेड, बराबर कि नहीं. तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम कंसीडर करते हैं कि व्हेन वी अप्लाई, देन हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. क्योंकि ये पूरा वायर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मतलब ये कंडक्टर के जो दो एंड है, दिस इज फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड, मतलब दो एंड के अक्रॉस हमने कितना पीडिया भी लगाया, V, किसके जरिए, बैटरी के जरिए. मतलब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर. इन दिस केस नाउ V is the potential difference between the ends of the conductor, and in that case how much current is flowing through the conductor, I, capital I current is flowing through the conductor. Now what is Ohm's law? Ohm's law is very important law which gives the relation between these two quantities. What are these quantities? V means what, electric potential difference, and I, what is that, electric current. Now we will state first this law. The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. Electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor, provided the temperature remain constant. एक कंडीशन है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर हमेशा के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए. उस केस के लिए क्या रहता है, वो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या आएंगे, इस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन दिया है. कैसा रिलेशन दिया है, ये दो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दिस इज द लॉ, बराबर कि नहीं. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बराबर कि नहीं. इसका मतलब क्या है कि यदि हमने पोटेंशियल डिफरेंस यदि 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो हाउ मच टाइम करंट्स विल इंक्रीज, करंट शुड इंक्रीज 2 टाइम्स, है कि नहीं. यदि हमने PD पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स कर दिया तो करंट शुड इंक्रीज 4 टाइम्स. यदि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया तो करंट भी जो वैल्यू उसके कैसा होता है, हाफ होता है. क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. देयरफॉर the relation between V and I is Ohm's law, and carefully we can define now. What is that? The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor, provided temperature remain constant. And therefore now mathematically जो हमने यहाँ पे बात कही है ना, the same thing can be written here. Electric current is directly proportional to the potential difference. Therefore I is proportional to V. Now if I is proportional to V, लिख सकते हैं हम V is proportional to I, बराबर कि नहीं. And therefore now
वी कैन राइट v इज इक्वल टू आर है, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हमको हटाना है, बराबर कि नहीं। जैसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल जाएगा तो वी हैव टू पुट द साइन ऑफ इक्वालिटी, देयरफॉर इट बिकम्स v इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम i, v इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम i, देयरफॉर v इज इक्वल टू r है। हियर ये जो r है, व्हाट इज दिस r? r इज नथिंग बट इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हमने इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये जो r है, द मीनिंग ऑफ r इज इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमारे सामने आ रही है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हियर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी मे राइट the equation for r now, therefore r equal to v upon I, ये I इधर चला जाएगा, therefore r is equal to v upon I, therefore r is equal to v upon I. This gives the resistance of the conductor of the wire, बराबर है कि नहीं। तो once again in short how to remember this Ohm's law, potential difference is directly proportional to current, है कि नहीं। तो while defining this relation we get one new quantity which is called as the resistance of a resistor, which is called as the resistance of a conductor. Okay, now since we got a new quantity, we require a unit, and the SI unit of resistance is ohm. Again, this is the after name of scientist George Simon Ohm, who gives just this Ohm's law, the concept of resistance, बराबर है कि नहीं। and therefore the SI unit of resistance is ohm. वर्ड में लिखना है तो OHM, ये O शुड बी स्मॉल, और सिंबल नाउ दिस इज, ये सिंबल जो है ना ये ओमेगा है, दिस इज ए ग्रीक सिंबल, दिस इज सिंबल इज ओमेगा, ठीक है। तो दिस SI unit of resistance is ohm, that is the omega. Now 1 ohm is equal to 1 volt upon ampere, बराबर कि जैसे हमने कहा कि SI unit of resistance is ओमेगा, बराबर कि नहीं, या ओहम। अभी हमको ओहम को यदि डिफाइन करना है तो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। फार्मूला रिकॉल करो, R इज इक्वल टू V अपॉन I। यदि हमको R रेजिस्टेंस SI में चाहिए ओहम में, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगेगा, वोल्ट में लगेगा, और करंट किस में लगेगा, 1 एम्पियर। दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 ओहम। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो अगेन दिस इज सफिशिएंट टू डिफाइन द 1 ओहम। यहाँ पे भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि नहीं। यदि हमको पूछा कि डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, तो कैसा डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर या रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम when 1 ampere current is flowing through the wire, when a potential difference of 1 volt is applied across its ends, बराबर है कि नहीं। या अनदर लैंग्वेज में, when a potential difference of 1 volt is applied between the two ends of a wire to flow a current of 1 ampere, in that case the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. Now this is the definition, ठीक है। Now if the potential difference, ये देखो definition यहाँ पे की है, if the potential difference between two ends of conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm, है कि नहीं। ये यदि हमको फार्मूला मालूम है तो आसानी से हम ये डेफिनेशन कह सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना होना जरूरी है, 1 वोल्ट, और करंट का कितना होना जरूरी है, 1 एम्पियर। इस केस में रेजिस्टेंस कितना रहेगा आपका, 1 ओम रहेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ एज इट वाज टोल्ड कि दिस टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन we can plot a graph between these two quantities. Now this, on vertical axis the potential difference is taken, and on horizontal axis this electric current is taken. So what should be the nature of the graph? Nature of the graph should be a straight line. वो straight line ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दो क्वांटिटी आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। Now we can calculate the resistance from the graph. इस ग्राफ पर से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से फार्मूला से, R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। एक्चुअली यदि आपने फार्मूला यदि ओम्स लॉ यदि हमने देखा तो व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू R I, ठीक है, V इक्वल टू R I। अभी आपको थोड़ा यदि ज्योमेट्री मालूम होगा तो देयर इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, उसमें c रहता है कांस्टेंट। यदि इफ द लाइन इज पासिंग टू द ओरिजिन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 0, मतलब y इक्वल टू mx, इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू mx। अभी y के जगह हमने यहाँ पे v प्लॉट किया और x के जगह हमने
I प्लॉट किया तो इक्वेशन क्या होना चाहिए हमारा V इक्वल टू एम आई, V इक्वल टू एम आई, बरोबर कि नहीं। लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है, V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई, और यहां से हम क्या कर लेंगे V इक्वल टू एम आई, मतलब m बराबर r, वो जो m होता है ना वहां पे स्ट्रेट लाइन में, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप, उसको कहते हैं स्लोप। मतलब इस लाइन का जो स्लोप होता है, दैट स्लोप एग्जैक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट स्लोप का फार्मूला होता है कि डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पर अभी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे वैल्यू रहेगी v2 रहेगी, यहाँ पे रहेगी v1, v2 माइनस v1 यदि हमने ले लिया तो क्या होगा, इट इज डेल्टा v। यहाँ पे लैटरल करंट रहेगा, वो रहेगा I2, यहाँ पे करंट रहेगा I1, यदि हमने कंसिडर किया I2 माइनस I1, ये रहेगा डेल्टा है। एंड इफ वी टेक ए रेशियो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, surely this delta V upon delta, it is nothing but it is a slope of this line, and as per the discussion the slope is always, therefore किसी भी प्रकार का कोई कैलकुलेशन न करके if I plot a graph and if I have a slope, calculate the slope of the straight line, that slope must be exactly equal to the resistance of the conductor. Now there are some questions for a homework, just to recall the concept. Now note it down. Question number 1, potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. Calculate the resistance of the electric coil. ठीक है, तो read carefully example and solve it. Second example is there, when a 12 volt battery is connected across a resistor, there is a current of 2.5 milliampere. Find the value of resistance of resistor. ठीक है, तो these are the two examples based on Ohm's law. Now recall the concept and solve the numericals. ठीक है, तो आज के क्लास में जो भी आपने पढ़ा है, तो ट्राई टू रिकॉल इट, जस्ट रीड बुक्स, है कि नहीं, एंड मेक ए नोट्स. Once again we will recall what points we have discussed in today's class. The first point we have discussed, what is that? पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है कि नहीं। इन शॉर्ट में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, बराबर है कि नहीं। एंड क्या फार्मूला उसके लिए, V इज इक्वल टू W/Q. Okay, second point we have discussed, that is the important concept of Ohm's law. What is actually Ohm's law? Ohm's law gives the relation between two important quantities. कौन से? One is potential difference and another is electric current. How these quantities are related? The electric potential difference between across ends of a conductor is always directly proportional to the current. या उल्टा कैसा कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स ए, बराबर है कि नहीं। एंड देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ ए इक्वेशन वी हैव टू रिकॉल, रिमेंबर ओम्स लॉ लाइक V इक्वल टू IR या V इज इक्वल टू RI. What is that R? R is nothing but it is called as the resistance of that conductor, and the value of R is equal to V upon I, है कि नहीं।